Werner's theory of coordination compounds. So Werner's theory is the first theory of coordination compounds which frame the ideas about the structure of coordination compounds. So according to Werner's theory, uh, what different postulates are given by the Werner's theory. First is most of the metallic elements exhibit two types of valencies. First is primary valency, okay, and another is secondary valency. So primary valency, or it is also called as principal valence, okay, primary valence or principal valency, and is the charge on the central metal atom. Okay, primary valency is the charge on the central metal atom and it is ionizable. Yes, and secondary valency is the charge which determines the number of ligand attached to the central metal atom, and it is non-ionizable. Okay, so every metal tends to satisfy both of its primary and secondary valencies. Every metal has fixed number of secondary valencies. These are the postulates for Werner's theory. So first of all, most of the metallic elements exhibit two types of valency. First is primary valency, or second is secondary valency. Every metal tends to satisfy both its primary and secondary valency. Every metal has a fixed number of secondary valency. Secondary valency is a fixed number. The secondary valence is always directed towards fixed position in the space. Okay, so secondary valency possess a geometry. Okay, and on the basis of secondary valencies, the structure or the structure of coordination compounds is depend. Okay, primary valency is the oxidation number, you can say oxidation number of central metal atom. Okay, it is an oxidation number of central metal atom. See the example first. It is a coordination example of coordination complex, cobalt complex. This is a central metal cobalt and 6 ligand. Okay, लास्ट लेक्चर में लिगैंड सेंट्रल मेटल हमने देखा था. ठीक है, तो 6 ligand attached to a central metal atom like this cobalt, and these are the 6 ligand NH3. Okay, the square bracket is called coordination sphere. Yes, this is a square bracket which is called coordination sphere, and inside the coordination sphere there is a central metal atom and ligand. 6 number of ligands are 6 are attached to the central atom metal atom which is cobalt. Okay, so cobalt is a central metal atom and ammonia molecule, NH3 molecule, are the ligands, and Cl3 is the, yes, it is present outside the coordination sphere. Yes, so here you can calculate the primary and secondary valencies for this coordination complex. Okay, so for the primary valency means the charge on central metal atom, means the charge on cobalt, okay, is +3. Yes, it's +3. And the secondary valencies, the number of ligand or the lone pair donated by the ligand, lone pair donated by the ligand is 6. Total lone pair donated, okay, is 6. So structure, the total number of ligands are present is 6. So structure is octahedral. We'll see the what is geometry, number of, how the geometry depends upon the number of ligand in our next lecture. Okay, in this lecture we just see the postulate and of Werner's theory. Okay, so and the chlorine is the secondary valency, showing the secondary valency. Okay, see that it is represented as a dotted line. Okay, and the primary valency, the ligand is a solid line. Okay, 6 ligands. So after this is the ionizable, chlorine is ionizable here. Okay, so how you can calculate the primary valency and secondary valency for the coordination compound. See, the question is
this how many ions this complex will liberated in the water. Okay, means ionizable valencies and non-ionizable valencies. How many ionizable valencies and how many non-ionizable valency. Okay, see, so this is a complex ion. Okay, coordination sphere Cl3. so when you dissolve in the coordination complex, जब आप coordination complex को water में dissolve करोगे, H2O में dissolve करेंगे, तो ये जो square bracket है वो as it is रहेगा. ओके, और ये जो ionizable valency है वो क्लोरीन आयन जो है फॉर्म होंगे वाटर में. ओके, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है कॉम्प्लेक्स जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वो एज इट इज रहेगा. सी, कोऑर्डिनेशन ये हमने इसमें भी देखा है ऑलरेडी. सी कैसे आयोनाइज होता है. कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो एज इट इज रहता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन हम इसको बोलेंगे. ओके, तो या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा. ये कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी हम आगे क्लासीफाई करने वाले हैं. इसमें हम सिर्फ वैलेंस थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी पढ़ रहे. ओके, सो तो आयोनाइजेशन के बाद 3 क्लोरीन. ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर 3 chlorines are there. So on dissolving in water, the Cl3 minus is formed and complex ion is cobalt NH3 6 और charge आएगा +3. Now how to calculate the charge or cobalt? So this is +3 charge is primary valency और secondary valency जो होगा आपका ये नंबर होगा. yes, कि कितने लिगैंड अटैच्ड है. 6 लिगैंड अटैच्ड है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है. सेकेंडरी वैलेंसी इजी है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी जो है क्लोरीन को देख के नहीं निकालेंगे आप. ये सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज होता है उसको हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं. तो कैसे प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे, वो ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, कोबाल्ट, सेम एग्जाम्पल, कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स और एक क्लोरीन को हमने क्या किया है, ब्रैकेट के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा है. ठीक है, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और 2 क्लोरीन, पहले तीनों भी क्लोरीन जो है ब्रैकेट के बाहर थे. यस, नाउ 1 क्लोरीन जो है इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा है और 2 क्लोरीन जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर लिखे. ठीक है, तो अब इसकी हमको प्राइमरी वैलेंसी निकालना है और सेकेंडरी वैलेंसी. तो ये क्लोरीन अब लिगैंड कंसिडर होगा. यस, सो ये ही आयोनाइजेबल है. यस, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें 2 ही क्लोरीन एटम मिलेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है जो डिसोसिएट हो सकते हैं. ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर डिसोसिएट हो गया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइडेंटिटी लॉस होगी. ठीक है, आइडेंटिटी लूज होगी. तो ये जो है इसमें 3 क्लोरीन मिल रहे हैं. 3 क्लोरीन क्यों मिल रहे हैं डिसोसिएशन के बाद, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है. ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर 3 क्लोरीन एटम है, इधर 2 ही क्लोरीन है. तो डिसोसिएशन के बाद हमें 2 क्लोरीन मिलेंगे और ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा. Cl माइनस मिल रहा है तो ये आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. ओके, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है. ये क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, वो हम डिटेल में देखेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है. सी, नाउ इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करनी है, प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट करनी है मेटल एटम की, सेंट्रल मेटल. तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम सबसे पहले जो लिखते हैं, सबसे पहले जो लिखा होता है वो सेंट्रल मेटल होता है. ठीक है, सेंट्रल मेटल, कोबाल्ट, कॉपर जो भी है, यहाँ पे एग्जांपल है कोबाल्ट का, तो ये कोबाल्ट जो होगा सेंट्रल मेटल एटम है. सेंट्रल मेटल एटम के बाद जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है वो होते हैं लिगैंड्स. ओके, उस और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इधर जो होती है आयोनाइजेबल और जो डिसोसिएट होगा. ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कैटायन और एनायन जो भी है. अगर कैटायन है तो यहाँ पे होगा पॉजिटिवली चार्ज, एनायन है तो इस साइड लिखा होगा. ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के पहले लिखा है तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, वो हम डिटेल में देखेंगे. तो अभी हम प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सेंट्रल मेटल एटम. द सेंट्रल मेटल एटम हियर इज कोबाल्ट. तो हमको इसका कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमने x सपोज किया है. ओके, NH3 जो होता है अमोनिया, वो न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल के लिए कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसके लिए 0 चार्ज है.
कितने अमोनिया मॉलिक्यूल है इधर 5, तो 5 के लिए, एक अमोनिया के लिए 0, तो 5 अमोनिया के लिए भी कितना होगा 0, 5 इंटू 0 इज 0। ओके, क्लोरीन के लिए चार्ज होता है -1, ये एनायनिक लिगैंड है। ओके, न्यूट्रल लिगैंड, कैटायनिक लिगैंड, एनायनिक लिगैंड, ये भी एक क्लासिफिकेशन होगा लिगैंड का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। ओके, सो ये इसके लिए आप कंसिडर कर रहे हैं, इसके लिए चार्ज होता है -1, और क्लोरीन यहाँ पे बाहर 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन का चार्ज है -1, तो 2 क्लोरीन के लिए होता है -2। ओके, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, हम क्या करेंगे, सबका समेशन करेंगे। ठीक है, x प्लस 0 कैसे आया, 5 इंटू 0 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ओके, प्लस इसका चार्ज है -1, इसके लिए चार्ज है -2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे जो चार्ज होता है वो कंसिडर करेंगे। यहाँ पे कोई चार्ज है कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, नहीं, तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे। ठीक है, 0 से उसको इक्वल करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर यहाँ पे क्लोरीन नहीं होता, यहाँ पे +2 +3 जो चार्ज होता है यहाँ पे आप वो लिख सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो 0 लिखना है। यस, नाउ यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 -2 इज +3, -1 -2 इज -3, और इधर शिफ्ट करेंगे हम राइट साइड, तो x का वैल्यू आ रहा है +3। x इज व्हाट, x इज the oxidation number of cobalt, charge on central metal atom, and charge on central metal atom is nothing but a primary valency C +3, कोबाल्ट +3। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज है वो +3 है, अमोनिया के ऊपर हमको पता है वो न्यूट्रल है, 0 चार्ज होगा, तो 5 6 जितने भी अमोनिया मॉलिक्यूल लेंगे हम वो 0 है। Cl, एक Cl के लिए -1 चार्ज है, 2 Cl मॉलिक्यूल जो ब्रैकेट के आउटसाइड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड है, उसके लिए -2 चार्ज है। ओके, तो -2 कंसिडर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट किया है, वो +3। इसी तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चार्जेस जो है लिगैंड्स के लिए हमें पता होना चाहिए क्या चार्ज है, न्यूट्रल लिगैंड पता होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड पता होना चाहिए, उसके ऊपर क्या चार्जेस होते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, इनके लिए तो हम सेंट्रल मेटल एटम के लिए इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट और प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, ओके, दिस इज 6। ओके, टोटल नंबर ऑफ लिगैंड इज 6। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में भी हमने देखा, फर्स्ट एग्जाम्पल में 6 अमोनिया मॉलिक्यूल है टोटल, इसमें 5 अमोनिया, 1 क्लोरीन है। ओके, तो सेकेंडरी वैलेंसी सेम है, प्राइमरी वैलेंसी भी सेम है। ठीक है, +3 चेंज क्या हो रहा है, तो जो हमको डिसोसिएशन के बाद, वाटर में ऐड करने के बाद जो मॉलिक्यूल मिल रहा है, डिसोसिएटेड आयन मिल रहा है, वो 2 क्लोरीन है और उधर 3 क्लोरीन था। ठीक है, मतलब हमको इससे क्या पता चल रहा है कि एक लिगैंड जो है, एक क्लोरीन यहाँ पे हमको कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। ठीक है, वो लिगैंड की तरह एक्ट कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी बन रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी से हम ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी जो है सिर्फ चार्ज है जो सेंट्रल मेटल एटम पे होता है। ओके, सो ये डिसोसिएशन के बाद हमने ये कहा, और ये जो चार्ज आ रहा है +2। ओके, क्योंकि 2 क्लोरीन को हमने निकाला है, तो यहाँ पे आएगा +2 चार्ज। ओके, तो इसके लिए कैलकुलेट, अब इसके लिए कैलकुलेट करना है, तो x 0 -1 इज इक्वल्स टू +2, सिर्फ इसके लिए। ओके, अगर इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स है तो 0 लेना है, इक्वल करना है 0। ठीक है, नाउ एक थर्ड एग्जाम्पल हमने क्या लिया, पहले 3 क्लोरीन बाहर थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, उसके बाद 2 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक ही क्लोरीन है, आयोनाइजेबल एंटिटी एक ही है, क्लोरीन एटम। यस, सो इसको हमें कैलकुलेट करना है प्राइमरी वैलेंसी। वर्नर्स थ्योरी में हम अभी पढ़ रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी। सो एक्स फिर से क्या कंसिडर किया, कोबाल्ट के लिए जो सेंट्रल मेटल एटम है इधर, वो है कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट। NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल के ऊपर जो आएगा चार्ज, अमोनिया जो लिगैंड है वो न्यूट्रल है। यस, क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ अमोनिया हियर इज 4, so 4 into 0 is 0. Okay, -2 is the charge for 2 chlorine atom. Okay, and charge for 1 chlorine is -1. So how to calculate the, wait,
how to calculate the charge on central metal atom, or you can also call primary valency. So x 4 into 0 plus सबका सम करना है, समीशन करना है, 2 into -1. Charge for 1 chlorine is -1. The total number of chlorine here is 2. So 2 into -1 plus -1. This is the charge for chlorine atom present outside the coordination sphere. Okay, is equals to 0. यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0 लिया, यहाँ पे +2 है, ठीक है, यहाँ पे 0 चार्ज है. तो इसके लिए क्या करना है, x प्लस 4 इंटू 0 इज 0, -2, 2 इंटू -1 इज -2 एंड -1, -2 -1 इज -3, x -3 इज इक्वल्स टू 0, therefore x is equals to +3. So charge on the cobalt is +3. ठीक है, so oxidation state of cobalt is +3, or you can call the primary valency of cobalt is +3. So dissociation के बाद जो होगा वाटर में yes, एक ही क्लोरीन एटम मिलेगा, क्योंकि एक ही क्लोरीन जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर प्रेजेंट है. यस, सो 1 क्लोरीन एटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ओके, यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो -2 इसके लिए आ रहा है, तो +1 चार्ज आएगा. ठीक है, +1 ब्रैकेट के ऊपर चार्ज होगा, +1 कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा ये. तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल हमने लिए जिसमें क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर कितने आयोनाइजेबल एंटिटी प्रेजेंट है. ठीक है, 2, 3. एक क्लोरीन को हम क्या करते गए, ब्रैकेट के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डालते गए. ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जोड़ते गए और उसको लिगैंड के फॉर्म में. तो इसका जो स्ट्रक्चर है सी, इसका स्ट्रक्चर अमोनिया मॉलिक्यूल इसी तरह से होगा, ऑक्टाहेड्रल अमोनिया. और एक एग्जांपल लेते हैं. अब जो है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो क्लोरीन एटम है, इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेके, और नेक्स्ट जो एग्जांपल मिलेगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का वो ये है. ठीक है, 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन एटम. अमोनिया को कम कर रहे हैं, नंबर ऑफ अमोनिया NH3 को हम कम कर रहे हैं, और क्लोरीन जो है जो ब्रैकेट के आउटसाइड में प्रेजेंट है उसको हम इनसाइड ले रहे हैं. ठीक है, अब इसके लिए सेम प्रोसेस प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट करना है. प्राइमरी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट होगी, x कंसिडर करेंगे. सेंट्रल मेटल एटम के लिए हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए x कंसिडर किया, अमोनिया का आ जाएगा 0. 3 अमोनिया है, NH3 है, तो 3 इंटू 0 इज 0, प्लस 3 क्लोरीन के लिए फॉर 1 क्लोरीन इज -1, फॉर 3 इंटू -1. ओके, सो x प्लस 0, 3 इंटू 0 इज 0, -3, तो x इज इक्वल्स टू +3. सो प्राइमरी वैलेंसी इज +3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज 6. कैसे, 3 क्लोरीन ओके एंड 3 NH3 मॉलिक्यूल 6. सारे एग्जाम्पल में सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी सेम है. ओके, डिफरेंस सिर्फ नंबर ऑफ क्लोरीन का आ रहा है. तो प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. अब वर्नर्स थ्योरी के में ये भी बताया कि इसमें 2 डिफरेंट कलर्स होते हैं. ठीक है, कैसे, ये जो होता है इसके आइसोमर्स की वजह से होते हैं. फर्स्ट जो है फेशियल आइसोमर्स, इसमें जो होता है फेस आइसोमर्स में 3 क्लोरीन सेम साइड में होंगे. सी, तीनों भी क्लोरीन जो है उसके सेम साइड पे होते हैं. सीधा डिफरेंट क्या है, कलर्स क्यों डिफर कर रहे हैं, क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट है. तो अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट को आइसोमर्स बोलेंगे. डिफरेंट अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम, आइसोमर्स. इधर कलर्स जो है अलग इसीलिए क्योंकि ये मर आइसोमर है, मतलब इसमें ट्रांस है सी, जिसमें ये डिफरेंट साइड पे 2 क्लोरीन और 1 अमोनिया NH3, 1 क्लोरीन और 1 NH3 एक साइड पे. ठीक है, ये तीनों क्लोरीन और ये 3 साइड. ओके, सो ओके, मेरीडोनियल दैट इज ट्रांस, उसको हम बोलेंगे मर आइसोमर्स. एंड फैशियल मीन्स फेस आइसोमर्स, जिसमें तीनों भी सेम फेस पे होंगे क्लोरीन एटम. ओके, और ये 3 डिफरेंट फेस पे होंगे. यस, तो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है, और आगे के प्रोसेस में लिगैंड्स पे क्या क्या चार्जेस होते हैं. ठीक है,
नेगेटिव लिगैंड्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव लिगैंड्स कौन से होते हैं, न्यूट्रल लिगैंड। क्लासिफिकेशन देखेंगे, हमने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे देखा था, डेंटिसिटी के बेसिस पे। क्लासिफाई वी ऑलरेडी क्लासिफाइड द लिगैंड्स बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, ओके। मोनोडेंटेड, एम्बीडेंटेड लिगैंड्स, पॉलीडेंटेड लिगैंड्स, ओके। मेटल से अगर एक ही बॉन्ड है तो मोनोडेंटेड बोलेंगे, जिसका क्लोरीन है उसके ऊपर एक ही चार्ज होता है -1, तो वो एक ही बॉन्ड जो है, एक क्लोन पेयर अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और मेटल से एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। OH- वो मोनोडेंटेड लिगैंड में जाएगा। तो ये डेंटिसिटी के बेसिस पे हमने लिगैंड का क्लासिफिकेशन देखा। दूसरा लिगैंड का क्लासिफिकेशन होता है इज बेस्ड ऑन द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द लिगैंड, ओके। नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, न्यूट्रल आयंस। सो ये जो है एम्बीडेंटेड लिगैंड। एम्बीडेंटेड लिगैंड में क्या होता है, 1 से 2 जो होते हैं डोनर एटम, ऑक्सीजन भी यहाँ पे डोनर है और नाइट्रोजन भी है, बट डिफरेंट क्या है कि एट अ टाइम और एक टाइम पे एक ही लिगैंड जो है डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऑक्सीजन भी मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ओके। आइदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ओके। एक टाइम पे एक ही लिगैंड जो है वो मेटल के साथ बॉन्डिंग करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल में तो ऑक्सीजन से मेटल का कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है एक टाइम पे, और एक टाइम पे नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है। तो डिफरेंट टाइम पे जो है वो अलग अलग लिगैंड्स बाइंड कर रहे हैं, ओके। लिगैंड एक ही है लेकिन उसमें ऐसे 2 एटम प्रेजेंट है जो डोनर है। इसमें नाइट्रोजन हो सकता है या तो सल्फर मॉलिक्यूल, ओके। सो दोनों भी लिंक कर सकते हैं मेटल एटम से। पॉलीडेंटेड में क्या आएगा, हमने एग्जांपल देखा इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन इज बाइडेंटेड लिगैंड, मींस इसमें ये दोनों भी नाइट्रोजन जो है मेटल को बाइंड कर सकते, इस तरह से होगा मेटल। ये मेटल एटम, ओके, यहाँ से भी बाइंड कर सकते हैं और यहाँ से भी। ये सेंटर में मेटल और ये NH3 बाइंड कर सकता है, ठीक है। और दूसरा जो एग्जांपल है वो ऑक्सैलिक एसिड से आया है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड में ये 2 C डबल बॉन्ड हो, OH OH, H रिमूव करने के बाद वो मेटल से दोनों भी साइड से बाइंड कर सकता है, इधर से भी और इधर से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो था हेक्साडेंटेड लिगैंड, हमने देखा EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। उसमें जो थे 6 साइट्स थे जो क्या करेंगे, लिगैंड्स के ऊपर बाइंड करेंगे, जिसमें 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन थे, ठीक है। 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनेगा, ठीक है। 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक बनेगा रिंग, ठीक है। इसका यहाँ से एक मेटल एटम होगा सेंटर में, इस तरह से सेंटर में मेटल, और ये 5 जो है 6 मॉलिक्यूल 6 एटम्स जो है मेटल को बाइंड करेंगे और एक 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग फॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड बेस्ड ऑन चार्जेस ऑन दी लिगैंड, नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। लिगैंड का क्लासिफिकेशन डिटेल में देखेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट के और एग्जांपल देखेंगे कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके।